नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेक्चर नंबर 9। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ दैट आर रिलेटेड फ्रॉम दी बैंकिंग रिफॉर्म्स concept. Now, before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 that are starting from 17th March 2021 onwards. 1 year batch for UPSC CSE 2022, Mission Victory 1 year batch, that is a bilingual batch both in English as well as in Hindi with top Unacademy educators. Also the batch are available in English language as well, that is starting from 17 March. Also लक्ष्य UPSC CSE 2022 GS की पूर्ण रूप से तैयारी, एक वर्ष का ये बैच है. इट इज़ ऑल्सो फॉर दी UPSC CSE 2022-2023. Hurry, get your subscription now. The link is in the description box. You just have to use the code ARPITA10 and get your subscription and get instant 10% of discount. This is the study planner, the iconic services as well as the Unacademy Plus services. Just you have to choose the 12-month subscription or the 24 or the 36 month. You can also use the combo for the optional one, the optional subjects. Get your subscription now. Just download the Unacademy learning app. Click on the course as the UPSC CSE. Click on the icon of the get subscription. Choose the subscription that you want and apply the code and get 10% extra off. ARPITA10 ARPITA10. Also on 14th of March 11 AM you can unlock the Unacademy Combat Scholarship Test, 60 questions in 60 minutes by using the code ARPITA10. Now today we'll be talking about the banking sector reforms in India, especially the two most important committees, the Narasimhan Committee and the P.J. Nayak Committee. Now, as in 1991, in the early 90s, liberalization was very much prevalent in India and it had came. There were certain reformation policies that the government needed to adopt for the banking sector. इसलिए हम देखते हैं कि 90s में जब लिबरलाइजेशन आता है, कोल्ड वॉर ख़त्म होता है एंड सोवियत संघ से जो हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो भी चेंज होता है, USSR से रशिया होता है, सारी चीज़ें चेंज हो रही थी उस टाइम पे और लिबरलाइजेशन भी आ रहा था, तो बैंकिंग में भी रिफॉर्म्स चाहिए थी. To promote the healthy development of the financial sector, the Narasimhan Committee made certain recommendations. These recommendations are, अब इसमें कुछ recommendations दी गई थी कि बैंकिंग सेक्टर को किस तरीके से उसमें रिफॉर्म्स लाने हैं. सबसे जो पहली recommendation थी, it was the establishment of 4-tier hierarchy for banking structure with 3 to 4 large banks, including SBI at the top and at the bottom rural banks engaged in agricultural activities. देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर में जो मॉनेटरी पॉलिसी की जहाँ पे बात करी जाती है तो वहाँ पे क्वालिटेटिव मेजर यूज़ कर दिया RBI. उनमें एक क्वालिटेटिव मेजर का नाम है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसको कि हम PSL भी बोलते हैं. पहले गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो बड़े बैंक्स हैं, स्पेशली जो PSB हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनको प्रायोरिटी के साथ लेंड करना चाहिए. पर्टिकुलर रेट्स जो हैं, इंटरेस्ट रेट, वो भी बैंक के ऊपर नहीं बल्कि गवर्नमेंट उनको सेट करती थी. उससे बैंक्स के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उभर के आने लगी. नरसिम्हन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि इंस्टेड की एक ही बैंक के ऊपर या जो PSB हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए कि वो रूरल बैंकिंग और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को बढ़ावा दें. आप RRB जैसे छोटे बैंक जो हैं उनको अलग गांव के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए, कि छोटे किसानों के लिए बना दीजिए, और जो बड़े बैंक्स हैं उनको भी आप ओपन अप कर दीजिए इन 4-tier हायरार्की स्ट्रक्चर. इससे होगा ये कि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते थे या जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एज पर दी PSL और दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो कर नहीं पा रहे थे इसको. उससे उनको एक विंडो मिली. अब जब 3 या 4 टायर का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच को लाएगा अपने साथ. The second recommendation was the supervisory functions over banks and financial institution can be assigned to a quasi-autonomous body sponsored by the RBI.
दूसरी रिकमेंडेशन थी उसका यही कहना था कि क्वाजी ऑटोनोमस बॉडी एक होनी चाहिए जिसको कि आरबीआई स्पॉन्सर करे, जो कि सुपरवाइजरी फंक्शन देखे सभी बैंकों के ऊपर, क्योंकि आरबीआई के पास भी बहुत तरीके के जो है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज फार एज द सेंट्रल लेवल इज कंसर्न्ड. The third recommendation was a phased reduction in SLR, and the fourth one was the phased achievement of 8% of the capital adequacy ratio. देखिए SLR और CRR जितना भी उसकी जो परसेंटेज थी 90s में बहुत हाई थी. SLR की परसेंटेज ऑलमोस्ट अराउंड 40% से ज़्यादा थी, जिसको कि अगर हम आज देखें तो आज केवल 18% है. इट इज़ ओनली 18% टुडे. SLR और CRR के अगर आप फेज़ आउट करते हैं धीरे धीरे, अगर आप उसे कम करते हैं तो उससे होगा ये कि जो बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होगा इन ऑर्डर टू मेक दैट मनी फ्लो बाय गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. लोगों के पास ज़्यादा लोन आएंगे, कम इंटरेस्ट रेट होगा, उससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा और वो अच्छे से इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा दे पाएंगे. दो ये कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, नहीं तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम दिखेंगी, जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर में बात की थी. लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बैंक्स को भी SLR और CRR के इतने जो बोझ है, जो इतना हाई रेट है, इससे कम कीजिए. उसी की उन्होंने बात करी कि 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए. अब देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे, लेकिन अगर अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसको कि बैंक्स मेंटेन करके रखते हैं इन ऑर्डर टू मीट अ सिचुएशन जहाँ पे बैंक रन ना हो. यानी कि आपने देखा होगा कि डिपॉजिटर अगर 100 रुपये जमा करते हैं बैंक में और कोई आता है और लोन के लिए वो उन्हीं 100 रुपीज़ को लेता है, तो CR और SLR को अगर हम हटा दें तो जो बचा हुआ जो लोन में घुमाने का जो पैसा है, जो फ्लो कराने का जो पैसा है, जो लोन आप किसी को देंगे, इनफैक्ट अगर वो इंसान या वो जो कॉरपोरेट है या कोई भी है, अगर वो लोन को पे नहीं कर पाता वापस और वो NPA बन जाता है, ऐसे केस में बैंक रन वाला जो सिनेरियो है वो आ सकता है. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको बचा के रखता है. एक तरीके से आप समझ सकते हैं इट इज़ अ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर व्हेन इट कम्स टू द रिस्क मैनेजमेंट स्पेशली इन बैंक्स. तो उन्होंने कहा कि इसको 8% की अचीवमेंट पे रखे. पांचवी रिकमेंडेशन ये थी एबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, कि जो ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसका एबॉलिशन कर दिया जाए. And the sixth one was the proper classification of assets and full disclosure of accounts of banks and financial institution. देखिए ये टाइम वही टाइम है 1991 में जब रिपोर्ट आती है, when there were many people स्पेशली जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में और कैपिटल मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी यानी कि धोखाधड़ी या फिर देर वर मैनी बैड इंसिडेंट्स दैट वर हैपनिंग, करप्ट इंसिडेंट्स दैट वर हैपनिंग इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर एज वेल. तो इसके लिए पूरा डिस्क्लोजर चाहिए था बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशन प्रपोज्ड बाय द फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी. एंड द सेवंथ रिकमेंडेशन वाज द डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर डीरेगुलेशन हो, उसको बैंक्स निर्धारित करें, ना कि गवर्नमेंट की इतने का रेट इसको देंगे. और वो बहुत ही कम भी हुआ, हम देखते हैं इसको, क्योंकि पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि वो किसानों को कितने रेट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलना चाहिए, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था गवर्नमेंट का. लेकिन इस कमेटी की रिकमेंडेशन में ये था कि इस इंटरेस्ट रेट की जो इंटरफेरेंस है इसको डीरेगुलेट किया जाए, गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करे, बल्कि बैंक्स के पास पूरी ऑटोनॉमी हो. लेकिन हाँ, वो भी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो कि गवर्नमेंट पीछे से उसे बैक ऑफ करती है. The eighth recommendation was the delegation of direct lending activity of IDBI to a separate corporate body. ये हम NBFCs के लेक्चर में देखेंगे. The ninth one was the competition among financial institution on participating approach. And the 10th one was setting up an asset reconstruction fund to take over a portion of the loan portfolio of banks whose recovery has become difficult. देखिए काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स थे जो इनकी जो लोन रिकवरी थी वो बहुत ही ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रही थी और विच वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट. इसलिए उनके लिए एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन फंड यानी कि ARF की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सेटअप करने की, वो भी कमेटी ने रिकमेंडेशन के तौर पे दिया. अब आता है कि ये तो रिकमेंडेशंस हुई, एज द नेम सजेस्ट रिकमेंडेशंस आर ओनली रिकमेंडेशंस. वो आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते. लेकिन गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशंस को देख के जो हमने पिछले स्लाइड में देखी, जैसे कि 10 रिकमेंडेशंस को देखते हुए उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट भी करा और उससे रिजल्ट भी अच्छे आए. द फर्स्ट वॉज दी हाई SLR और CRR जो था उसे रिड्यूस कर दिया गया, जिससे कि बैंक जो है वो भी अपना प्रॉफिट अच्छे से बना पाएँ
और इंटरेस्ट रेट भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन मिले. द SLR हैड बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 38.5% in 1991 to 25 in 1997. This has left more funds with the banks for allocation to agriculture, industry and trade etc. ये मैं आपको बता चुका हूँ. उससे उनके पास ज़्यादा लोन के लिए पैसा रहा, इंटरेस्ट रेट कम हुआ और पब्लिक के पास ज़्यादा मनी आया है, ज़्यादा पैसा आया. The CRR is the cash ratio of banks' total deposit to be maintained with the RBI. The CRR had been brought down from 15% in 1991 to 4.1 in June 2003. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट अराउंड ये 3 times कम हुआ है from 1991 to 2003. The purpose is to release the funds locked up with the RBI. The Government of India passed the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act 1993 in order to facilitate and speed up the recovery of debts due to banks and financial institutions. 6 special recovery tribunals have been set up. An appellate tribunal has also been set up in Mumbai. देखिए पहले ये होता था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं या कई बार इवन जो मिडिल क्लास सेक्टर लैंडिंग जो होती है, वहाँ पे लोग लोन्स ले लेते थे लेकिन उसे पे नहीं कर पाते थे या बहुत सारे डिस्प्यूट होते थे. और उसके लिए बैंक्स अगर किसी के जो ज़मीन है या किसी का कोई भी कोलेट्रल है उसको लेकर उसकी नीलामी करती थी जब वो पैसा नहीं पे कर पाते थे लोन का, तो ऐसे केस में वो लोग हाई कोर्ट में अपना जो केस है उसे डाल देते थे. उसको बहुत ही प्रॉपर डिस्प्यूट मैकेनिज्म नहीं था, एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन बन जाती थी. उस सिचुएशन को काउंटरएक्ट करने के लिए और इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 पास किया. उससे 6 जो हैं स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स सेटअप हुए. अब इन रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में जो है अगर केस जाता है तो वो केस पेंडिंग नहीं रह सकता, वो केस तारीख पे तारीख उसका नहीं होगा, लेकिन वो जल्द से जल्द, उसकी मैकेनिज्म ही ऐसी कि उस पर तारीख दे ही नहीं सकते, उस पर जल्द से जल्द जजमेंट आएगी. और जब जजमेंट आएगी तो डिस्प्यूट भी नहीं होगा. इससे बैंक के पास NPA का भी कोई खतरा नहीं होगा. और अगर कोई बैंक ज़बरदस्ती किसी का कोलेट्रल जो है उसे हथियाने की कोशिश करता है तो जो नॉर्मल जनता है उसको भी एक्सप्लॉयटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो बैंक्स हों. वन ऑफ द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट टुक वाज आल्सो टू ओपन द बैंक टू द प्राइवेट सेक्टर. इसलिए आप देखेंगे कि 1990s के बाद बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जैसे HDFC बैंक, HSBC बैंक, बहुत सारे बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो आ जाते हैं, जिसके बाद लोगों को चॉइस मिलती है. New private sector banks have already started functioning. These new private sector banks are allowed to raise capital contribution from foreign institutional investors up to 20% and from the NRIs up to 40%. This has led to increased competition. इससे competition अच्छा होगा, increase होगा, उससे जो banks हैं वो अपनी services को भी अच्छा करेंगे. इसलिए आप देखेंगे कि जो PSBs हैं या जो nationalized बैंक थे उनकी सर्विस को लेके पहले बहुत क्रिटिसाइज़ करा जाता था. इनफैक्ट आज भी कई बार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सरकारी बैंक हैं उनकी सर्विस के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करा जाता है. लेकिन प्राइवेट बैंक्स के आने से लोगों के पास चॉइस आई और जो कंपटीशन है वो भी बढ़ा. इसलिए SBI की जो सर्विसेज आप आज देखते हैं वो काफ़ी अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू दैट इन दी 1980s और इन दी 1990s. The RBI has set up a board of financial supervision with an advisory council to strengthen the supervision of banks and financial institutions. In 1993, RBI established a new department known as the Department of Supervision as an independent unit for supervision of commercial banks. तो हम देखते हैं कि जो एक autonomous सब यूनिट चाहिए थी अंडर RBI, स्पॉन्सर्ड बाय द RBI और अंडर द RBI टू सुपरवाइज द बैंक्स, वो भी बनाई जाती है 1993. अब इस कमेटी को जब रिकमेंडेशंस आए और उसके मेजर्स जब गवर्नमेंट ने लिए तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे. बट रिकमेंडेशंस को भी 1998 में फिर फर्दर एक सेकंड रिपोर्ट आती है इसी कमेटी की. एंड इन 1998 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड येट अनदर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर नरसिम्हम. It is better known as the Banking Sector Committee. It was told to review the banking reform progress and design a program for further strengthening the financial system of India. The committee focused on various areas such as capital adequacy, bank mergers, bank legislation, etc. So what were the recommendations? देखिए 1991 की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट फर्स्ट जो थी, उसके अंदर सर्टेन रिकमेंडेशंस मैंने आपको बताया और गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए. लेकिन 1998 में भी इसको चेकअप करने के लिए कि ये जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, जो मेजर्स लिए गए हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, एक और रिपोर्ट आती है जिसकी सर्टेन रिकमेंडेशंस और थी. दीज वर strengthening banks in India. The committee considered the stronger bank system in the context of the current account convertibility CAC. It is thought that the Indian banks must be capable of handling problems and regarding domestic
लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ CAC। देखिए, हमेशा से इंडियन बैंक्स के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि उनके अंदर हमेशा डोमेस्टिक लिक्विडिटी की डिस्प्यूट आती रहती थी। ऑल्सो एक्सचेंज रेट हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते थे इंडियन बैंक्स, और इसलिए आप देखेंगे कि जो बाहर के जो बैंक्स हैं उनके अंदर इंडियंस का जो पैसा है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन बैंक्स जिनके अंदर बाहर के लोगों का यानी कि फॉरेनर्स का ज़्यादा पैसा हो। Thus, it recommended the merger of the strong banks, which will have multiplier effect on the industry. Now, the second recommendation that they gave was the narrow banking. Those days, many public sector banks were facing a problem of the NPAs, जैसे मैंने आपको बताया. Some of them had NPAs as high as 20% of their assets. Thus, for successful rehabilitation of these banks, it recommended narrow banking concept, where weak banks will be allowed to place their funds only in the short term and risk free assets. यानी कि जो छोटे बैंक हैं जिससे वो बंद ना हो, उनको शॉर्ट टर्म के लिए ही अपने एसेट को प्लेस करने का टाइम दिया जाएगा. फिर आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. In order to improve the inherent strength of the Indian banking system, the committee recommended that the government should raise the prescribed capital adequacy norms. This will further improve their absorption of the capacity also. Currently, the capital adequacy ratio for Indian bank is around 9%. तो आप समझ सकते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज बेसिकली द रेशियो जहाँ पे बैंक बचा रहता है बैंक रन की कंडीशन से. और बैंक रन की कंडीशन ऐसे सिनेरियो में भी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है. हो सकता है कोई जिसने लोन लिया हो बैंक से वो पे नहीं कर पा रहे हैं बैंक को पैसा, और वो NPA में भी कन्वर्ट हो सकता है हो जाए. लेकिन उस चीज़ को, उस बैड सिचुएशन को रोकने के लिए बैंक के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए नोन बाय द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR. इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क एसेट्स. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि बैंक रन से बचाने के लिए एक रेशियो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. Now the bank ownership. As it had earlier mentioned, the freedom for banks in its working and bank autonomy, it felt कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है बैंक्स में, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्टेक एक्वायर करा हुआ है उन बैंक्स में. तो इसीलिए जो फंक्शन है बोर्ड मेंबर्स का वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल लोगों के हाथ में होना चाहिए रेदर देन ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो गवर्नमेंट जिनको चाहती है उनके हाथ में हो. उससे इनएफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी. Also, the review of banking laws. The committee considered that there was an urgent need for reviewing and amending main laws governing Indian banking industry like the RBI Act, the Banking Regulation Act, the State Bank of India Act, the Banking Nationalization Act, etc. This upgradation will bring them in line with the present need. देखिए, इतने सारे जो लॉज हैं उनका कहीं ना कहीं हमें कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलता है इन दी बैंकिंग सेक्टर, वेदर इट वॉज इन दी 1990s, इन दी अर्ली 2000 और इवन इन दी 2010. अब इनको अगर आप इनलाइन इनको अमेंड नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट, विद द करंट रिक्वायरमेंट, तो उससे प्रॉपर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता. इसलिए बैंकिंग लॉज को भी रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी था. अपार्ट फ्रॉम दीज रिकमेंडेशंस, द कमिटी ऑल्सो रिकमेंडेड फास्टर कंप्यूटराइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, डीपोलिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, प्रोफेशनलिज्म इन बैंकिंग एंड रिव्यू बैंकिंग रिक्रूटमेंट. तो ये कुछ उसके फर्दर रिकमेंडेशंस थे. अब हम देखते हैं PJ नायक कमेटी जो कि आई 2014 में, उसके क्या रिकमेंडेशंस थे. देखिए 2014 का जो टाइम था इसमें हमें देखने को मिलता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो थी, जो मॉडल था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जो कि एक बहुत बड़ा मॉडल माना जाता है, एंड ऑल्सो जो गवर्नेंस थी इन द बैंकिंग सेक्टर वाज नीडेड टू कीप ऑन चेक. इसलिए RBI सेटअप इन 2014, इन जनवरी 2014 दी PJ नायक कमेटी. PJ नायक was the CEO and the chairman of the Axis Bank, and so the committee made certain key observations that बहुत ज़्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का PSBs में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल. इतना कंट्रोल था कि 50% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट के ही थे. तो जो बैंक थे वो कंपटीशन में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे. प्लस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे बैंक्स में, जितने भी PSBs थे, नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, उनके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इनएफिशिएंट थे. दे वर नॉट दैट मच एफिशिएंट. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड लोग नहीं थे, दे वर जनरलाइज्ड पीपल. काफ़ी इनमें से ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ही इनएफिशिएंट मैकेनिज्म हो गया था. इसलिए बैंकिंग की सर्विस पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा था. एंड इन ऑर्डर टू चेंज दैट, PJ ने कमेटी की कुछ जो ऑब्जर्वेशन थी वो चाहते थे कि इसमें बिल्कुल ही स्पेशलाइज्ड लोग हैं, बैंकर्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बने. One of the observation was too much control of government, lack of specialized personnel in the management, as I told you earlier. The performance and governance structure of PSB
वर वेरी वीक एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स। इसकी तो आप रिफ्लेक्शन आज भी देख सकते हैं। जब आप एक प्राइवेट बैंक में जाते हैं आपको एक अलग ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, और अब अगर आप एक पीएसबी बैंक में जाते हैं, पीएसबी में जाते हैं, तो आपको एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। ये ट्रीटमेंट इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द पीपल हु आर वर्किंग देयर, वो तो केवल एक बहुत ही माइक्रो लेवल का हिस्सा है, लेकिन जो बड़े लेवल पे जो चीज़ है वो ये वाले रिफॉर्म्स हैं जो कि लाने में सरकारें जो हैं वो इतनी सफल नहीं रह पाई। द करंट स्ट्रक्चर ऑफ पीएसबी कैन बी टर्म्ड एज द मॉडल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नो देयर वर 3 recommendations मेड बाय द कमिटी। ये 3 ब्रॉडर टर्म्स में आप डिवाइड कर सकते हैं और इनको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिडक्शन इन स्टेक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। पहला है रिडक्शन इन स्टेक। द गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस इट स्टेक इन पीएसबी टू लेस देन 50%। देखिए 50% से अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर देती है, या जो उसके शेयर्स हैं 50% से कम कर देती है, उनको मार्केट में आईपीओ उनका ले आती है, तो उससे होगा ये कि गवर्नमेंट का स्टेक कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का स्टेक कम होगा तो गवर्नमेंट की जो पावर है ऑन दोज बैंक्स इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कम होगी, और उससे एफिशिएंट लोग ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ पाएंगे। द रिडक्शन विल टेक पीएसबी आउट ऑफ विजिलेंस, टायरनी एंड आरटीआई। आरटीआई से भी इसलिए पीएसबी जो है बाहर हो जाएगा। द रिफॉर्म अल्टीमेटली मीन्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबी। देखिए गवर्नमेंट के अभी हाल ही में देखा जाए तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन बेसिकली 2 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट, जिसमें वो पूरे का पूरा जो भी पीएसबी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको कम्प्लीटली लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई पीएसयू हो, उसको लेते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल के तहत वो पीपीपी मॉडल हो सकता है या कोई भी फर्दर मॉडल हो सकता है, उसे प्राइवेटाइज कर देते हैं। या फिर जैसे हम देखते हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। या फिर एक होता है फेज आउट प्राइवेटाइजेशन। फेज आउट प्राइवेटाइजेशन में ये होता है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करती रहती है, और उसे जब तक कम करती रहती है जब तक वो ऑलमोस्ट इतना ना हो जाए कि वो जो 90 या 80% स्टेक है वो प्राइवेट हो जाए। इसको हम बोलते हैं फेज आउट प्राइवेटाइजेशन। दी सेकंड रिकमेंडेशन वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसके अंदर पीएसबी आर टू बी रन इनिशियली बाय बैंक बोर्ड्स ब्यूरो एंड देन टू बी ट्रांसफर्ड टू बीआईसी, ऑल्सो नोन एज दी बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखिए जो अथॉरिटी थी बैंक्स के ऊपर वो पहले बैंक बोर्ड्स ब्यूरो थी जो कि रन कर रही थी पीएसबी को। उन्होंने कहा कि आप प्राइवेटाइज भी करते रहिए पीएसबी को, धीरे धीरे फेज आउट कीजिए, फेज आउट प्राइवेटाइजेशन कीजिए, और जो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए बीआईसी को, यानी कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को, धीरे धीरे। क्योंकि बीआईसी वाज इंटायरली मैनेज्ड बाय बैंकर्स, चेयरमैन, डायरेक्टर्स एंड सीईओज ऑफ द बैंक्स। तो इस सब समझ सकते हैं कि जनरलाइज्ड वर्कफोर्स से स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स पर ट्रांसफ़र हो रहा है। Then there were also certain governance reforms that were told by the PGNI committee, that the committee also suggested that the position of the chairman and managing director of the banks must be split. तो यहाँ पे आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी एक रूप देखने को मिलता है। The committee has suggested a fixed term of 5 years for the chairman and managing director of a bank and a term of 3 years for a whole-time director. So these were certain recommendations that were given by the PGNI committee. बैंकिंग रिफॉर्म्स, जैसे जैसे समय बदला, इकोनॉमी बदली, लोगों की परचेजिंग पावर बड़ी हुई, कम हुई, वर्ल्ड फोरम पे, जियो पॉलिटिक्स पे इकोनॉमिक इफेक्ट आया, उसी के साथ लिबरलाइजेशन आया, बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी, और काफ़ी सारी कमिटीज़ आईं जिन्होंने अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी, रिकमेंडेशंस दी, जिसको गवर्नमेंट ने भी कुछ को फॉलो किया, कुछ को अभी भी फॉलो नहीं किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम have been very helpful in the banking structure, in the banking sector. This was all for today. Thank you.